So today I'm going to discuss about the aquatic resources of Bihar. Okay, this is one of the topic which we are going to study under the course inland fisheries. Okay, so before we start about the aquatic resources of the Bihar, I just want some information from you people. Anyone can define me what does mean inland fisheries, or simply what is fisheries? Rearing and culturing of fishes. Is if rearing and culturing of fishes is fisheries, then what is aquaculture? Not to means rearing and culturing of aquatic weeds and aquatic animals are aquaculture. Okay, so rearing and capturing of fishes is fisheries. Anyone else? Culture. Ma'am, inland fishery is an activity to extract fish or other aquatic organisms from inland water. Inland water. What does mean inland water? Inland water is, ma'am, lake, river, stream, fresh water it means. Is inland water. Okay. So we are going to study. So in Bihar, जो हमारे aquatic resources हैं या जो water है बिहार में, वो कौन सा है? We have the inland water, or we also have the जो हमारे resources हैं, वो सिर्फ inland waters हैं या दूसरे resources भी हैं? Inland waters. मैम inland water. सिर्फ inland waters ही हैं. Inland waters में क्या क्या आता है? आप बोल रहे हैं there is a lake, then reservoirs, rivers. Okay, Dam. all water bodies, dams, Man. rivers. Okay, Shores and mountains, Canals. canals. So all these are the aquatic resources. Okay, so if I'm talking about the fisheries, fisheries includes the activity which includes the culture as well as the capture of the aquatic, economically important aquatic species, mainly fishes. Okay. So अगर मैं फिशरीज की बात करूं तो बेसिकली चाहे आप इनलैंड फिशरीज की बात करें चाहे मरीन फिशरीज की बात करें, देयर इज ऑलवेज उनके दो सब डिवीजन है. एक होती है आपकी कैप्चर फिशरी, दूसरी होती है आपकी कल्चर फिशरीज. सो अगर हम इनलैंड की बात करें तो इनलैंड में कैप्चर और कल्चर दोनों ही फिशरीज बहुत सिग्निफिकेंट है. अगर हम मरीन में बात करते हैं मरीन फिशरीज की, तो मरीन फिशरीज का जो मेजर पार्ट है, जो मेजर एक्टिविटी है, जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दैट ऑलवेज कम फ्रॉम द कैप्चर फिशरीज. मीन्स the marine fishes, fin fishes or shellfishes, they are basically catch from the sea for economical activities. Okay. So and culture जो है आपकी marine या brackish species का वो बहुत limited है. Okay. But when we talk about the inland fisheries में capture और culture दोनों ही का जो role है वो बहुत significant है. और inland fisheries जो है वो ज़्यादा complex है if we compare with the marine fisheries. आप एक तो यहाँ पे दो आपकी कंट्री में अगर हम इंडिया की ऐसे बात करें तो कल्चर और कैप्चर दोनों में क्या है, इनलैंड फिशरीज में आपका सिग्निफिकेंट वो है बहुत ज्यादा. बहुत हमारा जो अगर एक्वाकल्चर में बात करें तो वी हैव अ रैंक इन द ग्लोबल एक्वाकल्चर प्रोटेक्शन. ओके, इसके साथ ही आप जो है इनलैंड में भी बात करें तो जैसे उसमें क्या होता है, आपको जो मरीन में जो कैप्चर फिशरीज होती है उसमें सेम टाइप के गियर्स यूज होते हैं, उनका सारा रिकॉर्डिंग होता है डेटा का, उसमें ऑपरेशन इजी है. इनलैंड वाटर जो है वो फ्रेजाइल भी है और इंटरप्टेड बॉडीज भी है. इंटरप्टेड बॉडीज होने के साथ साथ उसमें जो है एक्टिविटीज और गियर्स और वो सारे अलग अलग यूज होते हैं. तो जो इनलैंड वाटर में जो कैप्चर फिशरीज होती है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है. ठीक है. सो यहाँ पे मैं बात अभी तो ये होगी कैप्चर फिशरीज अंडरस्टैंड ना, जहाँ पे आप ऑलरेडी जो नेचुरल स्टॉक है वाटर के अंदर, चाहे मरीन हो चाहे फ्रेश वाटर हो, वहां से आप जो नेचुरल स्टॉक किसी भी नेट के थ्रू, किसी गियर के थ्रू, जाल से आप जो निकाल रहे हैं, दैट इज नोन एज अ कैप्चर फिशरी. कल्चर आप क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल या तो नेचुरल वाटर बॉडी में या आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज में आप एक स्मॉल साइज का एक साइज का जो है उसमें यंग्स वन को डालते हैं और फिर जब वो कंसिडर उनको फीडिंग करते हैं, उनका मैनेजमेंट करते हैं. फीडिंग और मैनेजमेंट के बाद जब वो एक मार्केटेबल साइज का हो जाता है, then you used to capture it or sell it. वो है आपकी culture fisheries. Okay, so when we talk about the inland fisheries, we have to consider both the capture inland fisheries as well as the
culture inland fisheries. As I have discussed with the sir, he already told कि जो Indian आपके aquatic resources हैं वो आप लोगों ने already पढ़े हैं. So today we will talk specifically for the aquatic resources of the Bihar. Okay, so here we'll see the aquatic resources of Bihar. So आप मुझे बताएंगे what comes under the aquatic resources की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं aquatic resources की बात करूं तो इसमें क्या आता है? Ponds, oxbow lakes, reservoirs, flowing rivers and wetlands. कहने का मतलब जितनी भी water bodies हैं they all comes under Wetlands. the aquatic wetlands. Okay, all type of water bodies, whether it is a river, Upland stream, lake. ठीक है, I understand all type of water bodies you are talking about ना, whether it is a river, it is a stream, lakes, okay, wetlands, floodplains, आपने बताया oxbow lakes, mons, chors, okay, so all the water bodies, okay, they comes as a aquatic resources. So aquatic resources means water bodies only or something else also? एक्वेटिक रिसोर्स. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख देती तो फिशरी रिसोर्सेज ऑफ बिहार, तो आप उसमें क्या क्या बताते मुझे? मैम oxbow lakes, Aquariums भी आ बिहार, सकते हैं उसमें. reservoir, flowing rivers, wetlands, tank and ponds. नहीं, ये तो ठीक है, ये ऑल दीज आर द एक्वेटिक रिसोर्सेज ना. अब मैं कह रही हूँ कि अब मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ फिशरीज रिसोर्सेज. But these resources available in Bihar. व्हाट? हाँ, मैं बिहार की बात कर रही हूँ, मैं लिख देती यहाँ पे फिशरीज रिसोर्सेज ऑफ बिहार. तो भी क्या लिस्ट वही रहेगी? रिवर्स, स्ट्रीम, कैनाल्स, लेक्स, वेटलैंड्स, या कुछ बदल जाएगा? No ma'am, Aquariums, रहेगी मैम. Reservoirs, flowing rivers. वही रहेगी. तो फिर वहां पे मैंने एक्वेटिक रिसोर्सेज लिखा हुआ है, मैं फिशरीज रिसोर्सेज भी तो लिख सकती हूँ, क्यों नहीं लिखा? Ma'am, in fishery resources, basically it includes the fish species only, but in aquatic, the species other than the fish like prawns, shrimps, etc. can be included also. तो यहाँ तो आप एक्वेटिक रिसोर्सेज मुझे आप खाली रिवर्स, वेटलैंड्स बता रहे हो, फिर अभी ऑल ऑफ सडन अब बोल रहे हो एक्वेटिक में सिर्फ प्रॉन्स, क्रैब भी हैं. आई मींस यू डजंट हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ रिसोर्सेज की. अगर हम बात करें रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, बताएंगे? रिसोर्सेज मींस क्या होता है? एनीवन? मैम कोई भी चीज जहाँ से हम लोग को अवेलेबल हो रहा है तो उसको हम लोग रिसोर्स कह सकते हैं. क्या? जस्ट लाइक जैसे वाटर, किसी वाटर, ओके, वाटर का जैसे हम लोग को यूज है तो अच्छा, तो हम लोग ऐसी कोई, रिवर से या फिर मतलब लेते तो रिवर. यस मैम. okay, so means resources means something valuable. Okay, valuable for mankind that we are getting. मतलब किसी भी चीज से आप कुछ values, कुछ benefit मिल रहे हैं, वो आपके resource हैं. So when I'm talking about aquatic resources, as you people have told, these are the aquatic resources. ये rivers हैं हमारे state में, ponds हैं, lakes हैं, canals हैं, reservoirs हैं, ठीक है, different type के flood plains भी हैं. And if I'm talking about the fishery resources, fisheries मतलब मैंने इससे पहले भी जब मैं आपको explain कर रही थी about capture fisheries और culture fisheries, I was talking about fisheries means the activity which is includes the culture or capture of the fishes, okay, and what and the economic gains that is from those activities. So when I'm talking about the fishery resources, then it means it includes fishes or the aquatic species of economical values. Okay, तो आप चाहे फिशेज, जो भी एक्वेटिक स्पीसीज हैं जो कि इकोनॉमिकल वैल्यूज हैं, जिनका कल्चर या कैप्चर हो रहा है, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे. देन इट बिकम फिशरी रिसोर्स. इज इट क्लियर? यस और नो? Yes ma'am. Yes ma'am. And if I'm talking about Yes. resources means I'm only talking about the water bodies, okay, where we can where the capture and culture fisheries are performed in this state. Okay,
So now we will take what are the different aquatic resources of our state. So as I have told, if you talk about the state of Bihar as such, this is आपकी कंट्री के अगर सारे स्टेट की पिक्चर आप एक बार दिमाग में डालते हैं, so Bihar is the state which have the huge aquatic resources. Huge क्या अगर मैं सबसे ज्यादा blessed है अगर कोई state aquatic resources के नाम पे, सबसे ज्यादा aquatic resources अगर किसी स्टेट में है, इनलैंड पर्टिकुलर में बात कर रही हूँ, इनलैंड स्टेट की, तो अगर इनलैंड स्टेट्स को अगर मैं कंसिडर करती हूँ तो बिहार में सबसे ज्यादा एक्वाटिक रिसोर्सेज है। बिहार में अकेले सिर्फ बिहार स्टेट के अंदर जो रिवर की फ्लो है, जो लेंथ है 3200 किलोमीटर लेंथ पे रिवर्स, डिफरेंट रिवर फ्लो करती है। विच इज द मेजर रिवर ऑफ बिहार, कोई बताएगा मुझे? गंगा। कोसी मैम। गंगा, ओके। सो जो बिहार को जो गंगा। ड्रेन, हाँ, जो बिहार को जो ड्रेन कर रही है, उत्तर प्रदेश और बिहार को जो गंगा जो रिवर सिस्टम है वो ड्रेन करता है। सो जो गंगा का जो सबसे फर्टाइल प्लेन है, दैट इज उत्तर प्रदेश एंड बिहार ओनली, ओके। द फर्टाइल प्लेन ऑफ द रिवर गैंजेस और द गंगा रिवर सिस्टम इज बेसिकली द बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो जो बिहार में जो मेजर नेटवर्क है रिवर का, दैट इज फ्रॉम द गंगा रिवर सिस्टम। उसके अलावा भी कुछ दूसरी मेजर रिवर्स हैं, ठीक है। सो इस स्टेट में ऑलमोस्ट 3200 किलोमीटर लेंथ पे जो है वो रिवर्स फ्लो कर रही है। उसके बाद 1 लाख हेक्टेयर चॉर्स या फ्लड प्लेन वेटलैंड्स, ये मैं अभी इस स्लाइड के बाद आई विल डिस्कस व्हाट आर फ्लड प्लेन वेटलैंड्स, ओके। सो दे ऑलमोस्ट 1 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फ्लड प्लेन्स हैं, then 9000 hectares of oxbow lakes है, and then around 7200 hectares of जलाशय बोलते हैं, जलाशय मीन्स रिजर्वॉर्स, ओके। रिजर्वॉर्स जो है वो आपके 7200 हेक्टेयर्स है। तो मुझे बता सकता है लेक्स और रिजर्वॉयर का नाम सुना है? कहीं कहीं हम वर्ड यूज करते हैं कि ये लेक है और ये रिजर्वॉयर है, दोनों में कोई डिफरेंस बता सकते हैं? दोनों में पहले सिमिलैरिटी बताइए फिर डिफरेंस बताइए। लेक मैम नेचुरल है, लेकिन रिजर्वायर मैन-मेड है। हाँ, ये तो हो गया दोनों का डिफरेंस। लेक जो है वो नेचुरल है और रिजर्वॉयर मैन मेड है, एंड व्हाट इज, ये तो हो गया डिफरेंस। व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द रिजर्वॉयर एंड लेक? मैम दोनों में कल्चर कर सकते हैं फिश का। वो तो नदी में भी कर सकते हैं, वो तो तालाब में भी कर सकते हैं। एनीवन कोई बताएगा? ये तो डिफरेंसेस है मैन मेड और नेचुरल का। व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द रिजर्वॉयर एंड लेक? अच्छा, किसी ने लैंटिक और लोटिक वाटर के बारे में पढ़ा है? Yes, ma'am. What is lentic water? Stagnant water. Stagnant water. And lotic means flowing water. Running water. Running water. अब कोई मुझे बता सकते हैं क्या सिमिलैरिटी है लेक्स और रिजर्वॉयर में? लैंटिक मैम, लैंटिक वाटर। हाँ, वो दोनों रिजर्वॉयर मैम लेंटिक वाटर है। रिजर्वॉयर में लेक इज अ lentic and reservoir is lotic. No, नो मैम, बोथ आर लैंटिक। Both are lentic means चाहे आप रिजर्वॉयर और लेक से हैं, they both have the stagnant water, okay. The reservoirs are man-made construction, okay, and lakes are natural depressions on Earth's surface, okay, and both have the static water. Is it clear? That is the similarity. So हमारे स्टेट में अराउंड 7200 हेक्टेयर्स ऑफ रिजर्वॉयर। आप किसी एक रिजर्वॉयर का नाम बता सकते हैं बिहार में? ये आपका अपना स्टेट है। Come on. रिजर्वॉयर का नाम बताइए। I'm audible? I'm audible. गंडक। गंडक is a river. इस पे कौन बताइए? Anyone? हाँ बताइए। Just tell me one reservoir, otherwise तो क्लास आगे नहीं बढ़ेगी।
बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है ये तो। Anyone? Yes. There is a dam which is situated beside Bhagalpur, but I don't know it is working or not, and its name is Chandan Dam. कौन सा डैम? Chandan Dam, Chandan Dam. It is in Banka. बांका। ओके Chandan Dam. ओके, और कोई? यस, जल्दी बताइए। डैम्स हैं कि नहीं आपके स्टेट में? I'm Kosi one. कोसी, दिस इज ऑल रिवर। मैम दुर्गावती एक रिजर्वायर है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। Durgavati is another reservoir. Okay, so finally you people googled some of the reservoir of your state. Okay, very good. So at least this is assignment. You should at least everyone have to submit at least name of 5 reservoirs of your state. Okay, because ये this is the resources of your state ना, aquatic resource है तो आपको पता होना चाहिए। And reservoir fisheries बहुत significant fisheries है, वहां से अच्छा रिटर्न है, ठीक है, बहुत पोटेंशियल है रिजर्वर फिशरीज का। ओके, सो नाउ there is around 69,000 hectares of ponds and dams. Okay, so this is actually in short the aquatic resources of Bihar. Okay, so this we have seen. Now we will take in detail what are the floodplain wetlands and Oxbow Lake. Okay, the Oxbow Lake, because there is only three or four states which have a very significant fisheries activity using the floodplain wetlands in Oxbow Lake. That includes Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, and Assam. Okay, in Assam and Bihar particularly, the floodplain wetland fisheries have a great potential. Even in the Assam, the floodplain fisheries, okay, or the fisheries of the wetland is means most of the majority of the people who are on the side of the river, who are living on the river borders, okay, their livelihood, okay, is basically on this floodplains wetlands, okay, and the floodplain wetlands fisheries is very significant in the state of Assam. It's not as उतनी ज़्यादा activities आपकी बिहार में नहीं है जितनी आसाम में है, okay, but yes, it has great potential. So here we will first see what are the floodplain wetlands and then Oxbow lakes. Okay, so now we'll first see what is floodplains and what is wetlands. Okay, and how we can use these terms together also. So whenever I'm talking about the floodplain, as the name suggests, okay, the flood means जो आपकी जब river में water overflow होता है during the monsoon. ओके, मॉनसून सीजन में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, जो आपकी ऊपर से जो हिमालयन रिवर्स है हमारे कंट्री में, या जो भी रिवर्स है जो माउंटेन से नीचे की तरफ फ्लो कर रही है, इतना ज्यादा रन ऑफ वाटर होता है, एक्सेस होता है, ओवरफ्लो होता है, और उसकी वजह से जो रिवर की बॉर्डरिंग लैंड्स हैं, यानी रिवर के दोनों तरफ का जो एरिया है, जो बॉर्डरिंग लैंड्स है, उसमें जो है पानी भर जाता है। ओके, so the land which bordered the river or the any stream, okay, which is subjected to the periodic means कभी कभी, जैसे कुछ फ्लड प्लेन्स वैसे होते हैं जहां से बरसात के मॉनसून सीजन में पानी भरता है, so they are known as the periodic flood plains. और कुछ होते हैं permanent flooding जहां होती है, means the lands which borders the river or stream जहां पे हमेशा ही लोअर डिप्रेशन होने की वजह से हमेशा ही पानी भरा रहता है। ओके, so these are the flood plains, means a low depression area which borders the river, okay, which have always the stagnant water of the river. It may be periodic, it may be permanent, मतलब किसी particular season में उस जगह पे पानी होता है या पूरे साल होता है, that are known as a flood plains. Now I'm talking about the wetlands. Okay, wetlands जो आपका रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, in that Ramsar Convention, the wetlands are
The definition of the wetlands are given there. Okay, so as per that convention का एक article है, I don't remember the number. It may be 1.1 or 1.4. Okay, so in that Ramsar convention में जो 1971 convention में जो wetland को define किया, as per that the wetland are the area of marsh or peat or water. It may be natural or artificial. This 7 जो है ये typographical error है. Okay. So whether natural or artificial, it may be permanent or temporary. Okay, it may be of fresh water, of brackish or marine, but the water depth of that wetland never exceeds 6 meters. Means ये आपका depression वाला area है, water area है, it may be of fresh water, may be of brackish or the marine water. लेकिन जो depth है उस area में वो कभी भी आपकी 6 meters से ज़्यादा नहीं होगी at the time of low tide. You know what is low tide and high tide? पता है आप लोगों को low tide और high tide क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या होता है बताइए? मैम हाई टाइड एरिया जो बिल्कुल शोर के साइड में होता है, जहाँ पे मोस्टली वेव्स आते हैं, वो हाई टाइड एरिया होता है. Low tide क्या होता है? मैम शोर से थोड़ा सा मीन्स वाटर बॉडीज के थोड़े से नजदीक में होता है मैम, मीन्स शोर एरिया के थोड़ा. और कोई अच्छा आप लोगों ने बीच विजिट मैम मैम हाई टाइड कम्स ड्यूरिंग फुल मून, पूर्णिमा के दिन जब वेव जो है बहुत मतलब कि हाई फोर्स से शोर के तरफ आता है, और लो टाइड मीन्स स्लोली आता है. अच्छा आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी बीच विजिट किया या किसी ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे गए हो या कहीं घूमने गए हो जहाँ आपने सुबह से शाम तक समुद्र के किनारे रहे हो या देखा हो? कोई है ऐसा? यस मैम. अच्छा गए हैं, कौन सा बीच विजिट किया आपने? मैम द्वारका में गए थे, पुरी में भी गए थे. पुरी में भी गए थे. सुबह से शाम तक आपने बीच पे वाटर का जो वाटर आता है, वेव्स जो आती हैं किनारे पे शोर पे, हाँ उसमें कोई डिफरेंस था सुबह में और शाम में? मैम सुबह को है ना बहुत दूर था वो वेव, मतलब कि, और शाम तक वो पास आते जा रहा था, मतलब कि हाँ. तो लो टाइड और हाई टाइड का मतलब क्या होता है? लो टाइड का मतलब जिस वक्त जो है पानी जो सी का वाटर है वो एकदम नीचे की तरफ है, जो मैक्स नीचे मतलब जहां से समुद्र की तल शुरू हो रहा है, वो लो टाइड है. और हाई टाइड वो होता है जिस वक्त किसी भी एक पर्टिकुलर पानी जो है बहुत ऊपर की तरफ मतलब लैंड की तरफ शोर पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस तक आ जाए वो हाई टाइड है. ठीक है. हाई टाइड लो टाइड किस वजह से होता है? मून और सन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स से होता है. रात के टाइम में मून की पोजीशन ऐसी होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्स होता है, इसलिए जो है हाई टाइड शाम की तरफ होती है एंड लो टाइड जो है वो मॉर्निंग टाइम में. ठीक है. ये डिपेंड करता है टाइम और पोजीशन ऑफ मून, सन, टाइमिंग, आपका जो सी का जो उसको जियोग्राफिकल लोकेशन क्या उन सब पे. तो जो लो टाइड है मीन्स वहां तक पानी का लेवल जहां से आपका सी फ्लोर शुरू हो रहा है, सी का बेंथिक रीजन मतलब जो तलहटी उसकी शुरू हो रही है. तो लो टाइड जहाँ पे जो जिस मार्क तक आपका लो टाइड आता है वहां उस लो टाइड के टाइम पे किसी भी वेटलैंड का जो वाटर है उसकी डेप्थ जो है वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं होगी. देन इट इज नोन एज अ वेटलैंड. ओके, इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. नाउ एज आई हैव टोल्ड कि हमारे जो स्टेट है एक्वाटिक रिसोर्सेज की बात कर रही थी, स्टेट की बात कर रही थी. सो हमारा बहुत सिग्निफिकेंट जो एरिया है वो अंडर दी वेटलैंड्स है, फ्लड प्लेन वेटलैंड्स है. चाहे हम ऑक्सफोर्ड लेक की बात करें, चाहे हम आपकी चौर और मॉन जो बोलते हैं ना, आपकी जो ऑक्सफोर्ड लेक है उनको मॉन बोलते हैं और जो आपके दूसरे फ्लड प्लेन्स है उनको चौर बोलते हैं. ठीक है. तो बेसिकली ये जो फ्लड प्लेन वेटलैंड्स होते हैं, फ्लड प्लेन वेटलैंड्स हम उनको बोलेंगे जो कि लोअर डिप्रेशन के एरिया हैं जिसमें पानी फ्लड की वजह से आता है. जब रिवर में फ्लड आती है तो हम लो डिप्रेशन वाले एरियाज में जो पानी भर जाता है उनको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन वेटलैंड्स. तो जो आपका बिहार है, बिहार में आपकी 3 तरह के वेटलैंड्स हैं, फ्लड प्लेन वेटलैंड्स हैं. ऑक्सफोर्ड लेक है, टेक्टोनिक डिप्रेशन है एंड वाटर लॉग्ड एरिया है. तो अगर मैं ऑक्सफोर्ड लेक की बात करूं तो आप लोग ऑक्सफोर्ड लेक जानते हैं क्या होती है? नाम सुना है कभी? यस मैम. क्या Ma'am.
कहाँ कौन से पोर्ट्स में से? कन्वर लेक बेगूसराय लेक है, बिहार से लेक। बिहार की एक लेक है कन्वर लेक बेगूसराय में, वो ऑक्सबो लेक है। ओ बिहार। यस मैम। यस यस, वो ऑक्सबो लेक है। अच्छा, कौन है बेगूसराय से आपके बैच में? कोई नहीं है? नो। ओके, अच्छा ठीक है, 1 सेकंड। ये just look at this second image. It is clear to you? Yes, ma'am. अच्छा एक यस मैम। हाँ, wait for a second. हाँ? Okay, so I was talking about the Oxbow Lake, हाँ? So मैंने जैसा बोला, चाहे आपकी ऑक्सबो लेक, जिसको कि हम मौन भी बोलते हैं लोकल में बिहार में, ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपके चॉर्स हैं या फ्लड प्लेन्स हैं, ओके, सो इनके बारे में विल डिस्कस। जस्ट सी जो ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओके। एक्चुअली जो ऑक्सबो लेक्स, और उसका नाम ऑक्सबो लेक क्यों है, ठीक है, कैसे उसका नॉमेनक्लेचर ऑक्सबो लेक है, तो होता क्या है सब, दिस इज द फ्लो ऑफ अ रिवर। दिख रहा है आपको? दिस इमेज इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये देखो, ये रिवर का फ्लो है। तो व्हाट हैपन, ये रिवर जो है, जब रिवर ऐसे फ्लो करती है ना, ये देखो, ये अभी ये मेंडरिंग हो रही है, मुड़ रही है रिवर। सो व्हाट हैपन, कभी कभी क्या होता है, ये रिवर जो है, अभी जब रिवर फ्लो यहाँ से हो रहा है वाटर का, जो सी रिवर स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, दैट इट पासेस, इतना सारा डिस्टेंस उसने पास किया, और फिर वो जाके ऑलमोस्ट इसी पॉइंट के क्लोज आ गई है। इज इट? हो गया ना ऐसा? सो होता क्या है, ऑक्सबो लेक का जो फॉर्मेशन होता है, ये जो रिवर है, ये अपने ये जो इतना लॉन्ग पाथ है, जो मेंडरिंग से जो इतना लॉन्ग पाथ बना है, इसको शॉर्टन करने के लिए क्या होता है, रिवर यहाँ से फ्लो ओपन हो जाता है, और ये रिवर का जो फ्लो है उसकी लेंथ छोटी हो जाती है, और ये जो है बीच में यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है वाटर बॉडी। सो अब ब्लॉक होने से क्या हुआ, ये जो एरिया है, ये जो मेंडरिंग से जो अलग एरिया बना था, यहाँ पे ब्लॉक हो गया, ये रिवर यहाँ से कॉन्टिन्यूस हो गई, तो ये एक अलग से, क्योंकि अब जब यहाँ से ये ब्लॉक हो गई, तो अब इस वाटर बॉडी का रनिंग वाटर से कोई कनेक्शन नहीं है, अब ये स्टैटिक वाटर बॉडी हो गई। सो इस जो रिवर मेंडरिंग के बाद जब रिवर अपना कोर्स को छोटा कर लेती है, जो अपनी फ्लो की जो डिस्टेंस है, जो फ्लो का जो रास्ता है, उसको छोटा करने के लिए यहाँ से कट करके सीधे यहाँ ज्वाइन हो जाती है। तो ये जो कटने के बाद जो लेक्स बचती है, जो वाटर स्टैंडिंग वाटर बॉडी बचती है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। अब ऑक्सबो लेक क्यों बोलते हैं? जस्ट सी, हैव यू सीन द ऑक्स? बैल देखा है ना आप सबने? हाँ, यस और नो? यस Yes, ma'am. बैल देखा है? तो बैल की पीठ पे कूल्हे जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके ऊपर वो हल वाला फ्रेम, जब हम खेत में, अगर आपने पुरानी मूवीज देखी होंगी, या अभी भी आपने खेत में अगर प्लॉइंग करते हुए देखा होगा बैल के थ्रू, तो क्या होता है, 2 बैल को एक साथ लगाते हैं और उसके गर्दन पे एक फ्रेम वुडन का लगा देते हैं ना, और फिर पीछे से उसमें हल लगा दिया जाता है। तो वहां पे एक उसके उस पीठ पे एक ऐसा बो जैसा स्ट्रक्चर होता है, कूल्हे जैसा, क्या बोलेंगे उसको, बो बोलेंगे ना, एक ऊंचा सा स्ट्रक्चर होता है। ये सो नो? Yes, ma'am. तो ये जो शेप होती है लेक की, वो ऑक्स के बो जैसी होती है। इज इट? है कि नहीं है? हाँ, so Yes, yes. that's why these lakes are known as a oxbow lake. Is it clear? सबको क्लियर हुआ? यस तो मैम। अब यस मैम। ऑक्सबो इसलिए क्योंकि इट हैज अ शेप विच इज वेरी सिमिलर टू द बो ऑफ द ऑक्स, और लेक इसलिए क्योंकि
ये जो है ये आपकी रनिंग रिवर से डिस्कनेक्ट हो जाती है। जब कोई भी वाटर बॉडी आपकी रनिंग वाटर बॉडी से डिस्कनेक्ट होगी मीन्स नाउ इट बिकम स्टैटिक वाटर बॉडी। और लेक जो इस और लेक का जो कैरेक्टर क्या होता है, दैट इज द स्टैटिक वाटर बॉडी। इज इट क्लियर? सो दिस इज द ऑक्सबो लेक। सो जो आप बोल रहे थे जो आपका बेगूसराय में जो कन्वर लेक है, दैट कन्वर लेक इज द एशियाज लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक। ओके, सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री में जो नंबर ऑफ ऑक्सबो लेक्स हैं वो सबसे ज़्यादा बिहार और आसाम में है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड सम इन द उत्तर प्रदेश ऑल्सो। ओके, सो जो आपकी एशिया की लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है वो आपकी कन्वर लेक है, दैट इज इन द बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। सो ये होगी एक टाइप की फ्लड जो है आपकी फ्लड प्लेन वेटलैंड। उसके बाद जो दूसरा मैं बोल रही थी टेक्टोनिक डिप्रेशन। टेक्टोनिक डिप्रेशन इसमें आपके वो सारे फ्लड प्लेन और वेटलैंड्स आते हैं जो कि अगर मैं फ्लड प्लेन्स की बात करूँ, बेसिकली द एरिया विच बॉर्डर्स द रिवर। ओके, जहाँ पे जब आपका रिवर फ्लो जब ओवरफ्लो होती है मॉनसून सीजन में, तो जो बॉर्डर पे जो पानी जमा हो रहा है वो फ्लड प्लेन है। लेकिन फ्लड प्लेन है जब अगर उस बॉर्डरिंग एरिया में डिप्रेशन है और वो डिप्रेशन टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से हुआ है। टेक्टोनिक मूवमेंट्स, इफ वी आपने अर्थक्वेक्स के बारे में सुना है? यस और नो? यस मैम। यस मैम। किसी ने फील किया है कभी अर्थक्वेक? यस मैम। यस किया है। ओके, सो अर्थक्वेक में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका क्रस्ट है अर्थ का, उसमें जो स्ट्रक्चर है जो आपका, अगर हम अर्थ को क्या कहते हैं, अगर हम उसका हॉरिजॉन्टल सेक्शनिंग करते हैं, ठीक है, ऐसे करके देखें तो नीचे वाले जो या वर्टिकल प्रोफाइल भी हम देखेंगे, सॉरी जब हम वर्टिकल प्रोफाइल देखेंगे अर्थ का, तो वो जो है डिफरेंट लेयर्स पे है, ठीक है। वो एक डिफरेंट लेयर्स या बेल्ट्स फॉर्म होती हैं जिनको हम बोलते हैं टेक्टोनिक बेल्ट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। सो होता क्या है, जब इन टेक्टोनिक प्लेट्स में जब मूवमेंट होता है तब अर्थक्वेक फील होता है, ठीक है। तो इन टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से भी क्या होता है, या तो डिप्रेशन होता है या कहीं पे थोड़ा ऊंचा हो जाता है। तो रिवर बॉर्डर्स पे जो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जो डिप्रेशन मतलब जो गड्ढा बन रहा है, वो उस तरह से जो फ्लड प्लेन्स बनते हैं, दैट फ्लड प्लेन्स आर नोन एज द टेक्टोनिक डिप्रेशन फ्लड प्लेन वेटलैंड्स। ओके, उसके बाद आपका तीसरा आता है वाटर लॉक्ड एरिया। वाटर लॉक्ड एरिया मीन्स ये वो एरिया है जिसमें पूरे साल पानी रहता है। नदी के किनारे के लो डिप्रेशन एरियाज हैं जिसमें पूरे साल जो है वो पानी रहता है, वो वेटलैंड है, और वो पानी रिवर का ही पानी है, ओवरफ्लो वाला पानी है जो कि रिसाइड नहीं होता। जैसे कि कुछ में क्या होता है, जैसे आपकी टेक्टोनिक डिप्रेशन से दूसरे फ्लड प्लेन में क्या है, जब नदी में पानी कम हो, मानसून सीजन गया, तो वो रिसाइड कर जाता है पानी, वहाँ पे आपको लैंड दिखने लगती है, जमीन दिखने लगती है। लेकिन जो वाटर लॉक्ड एरियाज होते हैं उसमें क्या होता है कि पूरे साल थ्रू आउट द ईयर वहाँ पानी रहता है, चाहे मानसून सीजन हो चाहे ड्राई सीजन हो, वाटर कभी रिसाइड होके वहाँ लैंड कभी एक्सपोज नहीं होती। तो उन एरियाज को हम बोलते हैं वाटर लॉक्ड एरियाज और द वाटर लॉक्ड फ्लड प्लेन वेटलैंड्स। तो जो आपके चौर हैं, जिनको हम चौर, मौन हो गए आपके ऑक्सबो लेक्स, जो आपके चौर्स हैं, दे आर बेसिकली द वाटर लॉक्ड एरियाज। ओके, इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is about today's class. Okay. इसके जो भी नोट्स होंगे सर विल शेयर टू यू पीपल। हाँ, और ये हो गया आपके एक्वाटिक रिसोर्सेज ऑफ बिहार। आगे की जो भी क्लासेस हैं सर विल टेक। ओके, सो एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है?